Good morning, everyone. Once again, good morning to everyone. And in the last class, we have completed the elasticity of demand and probably the price elasticity of demand we have completed. And we have seen the different degrees of elasticities of demand. This is what we have done in our last class. So today we'll proceed further from here onwards. Now, first of all, I'll show you some of the numericals to how the numericals can be asked depending on the demand functions and how should we answer them. All right. And the second thing is we'll see what are the different other types of elasticities of demand. All right. So first of all, we'll see the numerical part and then we'll proceed further. Then we'll proceed further. Well, let's start. Suppose we have been given, the demand function. And demand function is given as P is equals to 50 minus 5Q. Suppose this is the demand function given. Now what we have been asked is number one, he says the calculate the price elasticity at a point where price equals 7, let us assume. Got it? The second thing is it says what are the or simply it says graphically represent the above demand function. Graphically represent the above demand function. ये क्वेश्चन है हमारे सामने. Now we are supposed to answer this question. Now let us see the solution, how to solve this. We have been given this demand function and we have discussed this type of demand function. Which type of demand function is this? Yes, who will tell me? Yes, students. बेटे किस तरह का डिमांड फंक्शन है? Indirect. Inverse you can say. Inverse or indirect. Now first thing it wants us to calculate the price elasticity at the point where the price is 7. That means when the price is rupees 7, please do calculate elasticity. Now how to proceed with that? See, as per the point method, we know the elasticity can be calculated or elasticity is equals to P upon Q into में delta Q upon delta P. Is that okay? Now we have now we need these things, what we know, we want to know what is the value of P. We have to have value of Q and we have to have value of delta Q and we have to have value of delta P. Or if not these, then we must have the values of delta Q upon delta P. Isn't it? या तो हमें इसकी वैल्यू मालूम हो या इनकी वैल्यू मालूम हो, तब हम इसको सब्सटीट्यूट कर पाएंगे. दिस इज हाउ इट गोज.
तो अब सवाल है हमारे पास किस किस चीज की वैल्यू और कौन कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। तो P is given to us, so let us see what is the value of P. Let's write 7 over here. We have the value of P. We do not know what the Q is, but we know that this quantity is with respect to this price. Yes or no? कि हमें क्वांटिटी क्या है ये तो नहीं मालूम है, पर हमें इस बात का तो मालूम है इस फंक्शन के नेचर के अकॉर्डिंगली या इस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि ये जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी होती है ये इसी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उसको वो होती है। इज दैट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। बेटे आपके रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स का। क्या स्टूडेंट्स क्लास में है या नहीं है? Hello. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज डू रिस्पॉन्ड व्हेनेवर इट इज बीइंग आस्क्ड। ऑलराइट, तो ये समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वांटिटी है इसी प्राइस पर होती है, तो ये हम निकाल सकते हैं किससे कि P इज इक्वल्स टू है 50 माइनस 5Q। तो अब मुझे इसको थोड़ा दाएं बाएं करके सिंपल मैथमेटिक्स लगा के दाएं बाएं करके इसको थोड़ा चेंज फॉर्म करनी पड़ेगी। यह तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा -50 अपॉन में -5 माइनस P बाय 5। आई थिंक दिस वुड बी द इक्वेशन। सो और Q इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया, -5 1 जा 5, तो 10 माइनस P by 5 is the what gives us the quantity demanded. Now quantity demanded at price 7 we are supposed to calculate. So let's substitute 7 in place of P in this equation. Hold on. Let's substitute 7. So we have 10 minus 7 upon 5. Is that okay? Hello? Yes, sir. ये Yes, sir. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है इसमें? ये मेरे से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? नो नहीं, सर। ठीक। तो अब अगर हम Q देखें ये तो क्या सही है? Q इज इक्वल्स टू 10 माइनस, अब इसको करो जरा डिवाइड, कितना आता है ये? 7 by 5 इज 5 1 5 पॉइंट, ओके 43/5। हैं 1.4 4 आएगा ना? 1.4 सर। और Q इज इक्वल्स टू क्या आ सर जाएगा? Q 8.6। 8.6 हो गया, Q क्वांटिटी 8.6 हो गई। तो हमें ये क्वांटिटी पता चल गई 8.6 है। ठीक है, अब we do not know this, we cannot calculate this because we need two different points, two different coordinates. For this also we need, but we know that this can be calculated. Delta Q upon delta P is, what is this? This is delta P upon delta Q is -5, let us assume. So therefore हमें क्या चाहिए? डेल्टा Q upon डेल्टा P. डेल्टा Q upon डेल्टा P is what? 1 by -5. So this is 1 by -5. So elasticity would be equals to 7 upon 8.6 into 1 divided by ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5. आई होप दिस विल बी द इलास्टिसिटी. सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस डिवाइड करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है. हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? सर 0.16। यस सर। कितना आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है आंसर? 0.162 162 approximately. This is the elasticity. Is that okay? Did you get how to calculate Yes, sir. the elasticity in such cases? तो इस तरह के केस में हम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस यू ऑलरेडी नोज. Now onwards you already knows how to calculate elasticity. So first part we have completed, you know. This is the solution to the first part. Now the second part comes, कि graphically represent the above demand function. Now for graphical representation we are supposed to have the different combinations of price and quantity. Yes or no?
Now for that, what we are supposed to do, let me write the demand function once again over here. I think the demand function given is 50 minus 5q. This is the demand function in the inverse form that is being given to us. Inverse form. Now first of all, we are supposed to convert it into the direct form, and that will comes out to be q is equals to 10 minus p upon 5. This is what we have calculated recently. Look over here, this is what we got. Now we can first, before representing it graphically, first of all we are supposed to calculate different price and quantity coordinates or combinations, you can say. Let's let me try, let me draw this. Let me assume few values of price, and then we will have this. So let's substitute 0. In that case, the quantity demanded would be 10. If it is let us assume 5, then it will be 9, I think. Let's assume it's 10, then it will be 8, I hope. And when it's 15, then it will be 7, so and so forth. When the price reaches 50, then the quantity would be 0 in that case. So these are the two coordinates, sorry, intercepts. This would be horizontal intercept, and this would be vertical intercept. Now we can plot these points on a graph, or on a in the form of a graph. Then we will have something like this. Let me try and draw the graph neatly today. Let me use some tools. So if we draw these demand curves, if we plot all these points, then probably this might be the shape of our demand function. And let me draw the points for that matter. This is the origin point, and here is the price, and this is the quantity axis, and this would be the horizontal intercept, that is 10, and this would be the vertical intercept, that is what do you call it, 50, and here the gap would be 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. मीन्स थोड़ा गैप हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, और ये 50 तक ऐसे चला जाएगा. 5, 10, 15, 20, 25, then 30, then 35, then 40, then 45, and here we have the 50. Similarly, we can have points over here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this one is 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this one is 10. Now if we can join these points 0, 10, then at 5 it's 9. Probably this is the point. Similarly, we can have different points on this curve. So this is how we can graphically represent. This is the demand function. This is the graphical representation of demand function.
This is how we can graphically draw or represent the given demand function. Is that okay? Hello? बेटे समझ आया जितना कराया ये स्टूडेंट्स do reply. Did you get it? Students, are you there in the class? हेलो Yes, sir. बेटे क्या बात है आप लोगों Yes, की sir. आवाज आके और ये रिस्पॉन्स Yes, इतना sir. लेट व्हाई यू आर रिस्पॉन्डिंग Yes, सो sir. लेट व्हाई यू आर रिस्पॉन्डिंग सो लेट एम आई नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू हेलो anyways this is how we can draw this. Now let's move to the next topic. If there are no questions, then let's move to the next topic. Well, the next thing is other elasticities of demand. The topic is other. Hello, sir. Other elastic. Yes, please. Who is this? Sir Vaibhav. हाँ वैभव बोलो. Sir, do we have also to draw this graph in our answer? But if the question requires that you are supposed to graph it, then definitely you are supposed to draw it. Unless until how could you answer that? भाई अगर किसी ने आपको सवाल दिया कि चाय पी लो, तो आपने उस डायरेक्शन को ओबे कब मानी जाएगी? जब आप चाय पी लोगे. अगर आपने चाय पी नहीं, चाय को देखते रहे हो, तो फिर वो डायरेक्शन थोड़ी ओबे हुई. मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर क्वेश्चन में लिखा है Yes, sir. रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, तो ऑब्वियस बात है आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा उसका. इज दैट ओके? Okay. ठीक है. क्योंकि जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, वी आर सपोज टू आंसर दैट थिंग ओनली. ठीक है, जो पूछा गया सवाल उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना बच्चे. Now comes the other elasticities of demand. Now in case of other elasticities of demand, we have two types of elasticities of demand. First है income elasticity of demand. Second है cross elasticity of demand. Now we will first discuss the income elasticity of demand, then we will discuss the cross elasticity of demand. Now let us see. First we will see income elasticity of demand. Well, income elasticity of demand. How the income elasticity is being defined? Other things remains constant. Remains constant. It measures the degree of responsiveness of proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in price.
means other things remains constant, other than, oh, so proportionate change in income. I'm really very sorry for this. This is not price, this is income, because we are measuring the income elasticity. Proportionate change in income of the consumer, but obvious income of the consumer. That means ki other than the income, other things remains constant. What is elasticity of income elasticity demand is ki income elasticity demand measures the degree of responsiveness. Responsiveness here means the changeability. How much the quantity demanded is going to change with respect to change in income. Now, what kind of change? That is the proportionate change, or you can say the percentage change. कि percentage की quantity demanded में कितना percentage change होगा किसके कारण? इनकम में परसेंटेज चेंज के कारण. ठीक है, इनकम में परसेंटेज चेंज के कारण. दैट इज व्हाट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स. सो सिंपली इफ वी कैन राइट इट लाइक दिस, like income elasticity, let me substitute EY with this to represent Y is representing income, and this entire symbol is representing income elasticity, and this would be equals to what? The ratio of percentage or proportionate, you may write percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. So similarly we can proceed further, that percentage change in quantity demanded can be calculated as Q1 minus Q upon my Q into 100. Simply the new quantity minus the old one divided by the old one in multiplication with 100. We will get the percentage change in quantity demanded. Similarly, we can calculate percentage change in income. Now, how to calculate that? This is very simple. Y1 minus Y upon my Y into my 100. That means the new income level minus the previous or the old income level, or divided by the old income level in multiplication with the 100. Similarly, we can calculate delta Q. Delta Q is nothing but Q1 minus Q, and we can have delta Y. This is nothing but Y1 minus Y. Now, if we substitute these values in this formula, we will get something like this. EY equals Q1 minus Q upon my Q into 100, all divided by Y1 minus Y divided by Y into 100. So 100 se 100 cancel. So Q1 minus Q upon my Q into my Y upon my Y1 minus Y. Or we can write elasticity equals Y upon my Q into my delta Q upon delta Y. This is the formula for elasticity of income elasticity of demand. Is that okay? Similarly, in this case also we can measure, we can have the percentage method and we can have the point method, and point method would be something like the same formula, but only the difference is to calculate dq upon dy. This would be calculated with the help of calculus, and here we are calculating this with the help of, what do you call it, algebra. That's it. That is only the difference. And similarly we can have the arc method also. In this case, arc method means arc method or a midpoint method,
midpoint method, or you can say the average method. That method can also be used, and similarly we are supposed to have y1 plus y divided by 2, then q1 plus q divided by 2 into my delta q upon my delta y, then 2 will cancel out, and simply we have y1 plus y divided by q1 plus q into delta q upon delta y. Is that okay? Hello students, did you get it? Students, are you listening? Hello. Yes, sir. Yes, sir. बेटे समझ में Yes, आया? sir. तो इसमें हम ये आर्क मेथड निकाल लें, आर्क मेथड भी इसमें भी यूज हो जाएगा। इज दैट ओके? किसी ने कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? भाई आप में से किसी ने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now comes the types of income elasticity. इनकम इलास्टिसिटीज के कितने टाइप्स हैं? तो इनकम इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। There are three types of income elasticities. Let me mark it. The first one is known as positive income elasticity. There is something called positive income elasticity. Now what happens in this case? अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा? देखो बेटे, इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। अब जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये जो इलास्टिसिटी का आंसर आएगा ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। डिड यू गेट इट? हेलो, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में तो सिर्फ ये क्या होता था? नेगेटिव होता था हमेशा। बट इनकम इलास्टिसिटी में क्या है? इनकम इलास्टिसिटी में ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। डिड यू गेट इट? हेलो स्टूडेंट्स? Yes, sir. जो Yes, sir. इलास्टिसिटी की वैल्यू, इनकम इलास्टिसिटी के केस में जब हम इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये इलास्टिसिटी का आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो जब आंसर प्लस में आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इज दैट ओके? अब सवाल है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, other things remains constant when income and quantity demanded moves in the same direction. That means with increase in income, quantity demanded increases, and with decrease in income, quantity demanded decreases. Now the question is, in what kind of goods this will happen? So this will be the case of normal goods. And probably the luxurious goods. कि जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी तो लग्जरियस गुड्स की तरफ या नॉर्मल गुड्स की डिमांड वो बढ़ा देगा, उसकी नॉर्मल गुड्स के लिए क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब एक कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट से किसी दूसरे इनकम ब्रैकेट में चला जाता है तो वो गुड्स और सर्विसेज की जो चॉइस होती है, क्वालिटी होती है, उसको चेंज कर देता है। तो चेंज करना मतलब वो बेटर क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए लग्जरियस गुड्स में या नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रहेगी। इज दैट ओके? देन कम्स द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। Then comes the negative income elasticity. अब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या कहती है?
कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, when price and quantity demanded moves in opposite direction. That means if with increase in income quantity demanded decreases and with decrease in income quantity demanded increases, कि जिस समय इनकम बढ़ रही है उस समय क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रही है, और जिस समय इनकम कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। Sir, your voice is not clear. हेलो हेलो बेटे, आपके एंड पे ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मेरे यहाँ से मेरे एंड से हाँ जी सर, बार बार बीच में डिप हो Sir, रही है your आवाज। voice is breaking. आवाज ब्रेक हो रही है। Hello sir, your voice is not clear. हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। सर एक बार हाँ, सर एक बार सर, एक पॉजिटिव बार- इनकम इलास्टिसिटी प्लीज दोबारा बता दो कि थोड़ा समझ कम आया, आवाज कम आ रही थी। ठीक है, लेट मी रिपीट इट। थैंक यू सर। लेट मी रिपीट इट। सी कि जो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, अब ये देखिए इधर मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। जो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, इनकम इलास्टिसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो हमने ये लिखा है, दिस इज y नॉट p, दिस इज y, दिस इज डेल्टा q अपॉन डेल्टा y। जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी का केस था, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो प्राइस इलास्टिसिटी थी उसमें तो जो इलास्टिसिटी सर की फिर से वैल्यू, ब्रेक हो रही है। हेलो, ब्रेक सर हो रही फिर है से वैसे। प्रॉब्लम आ रही है अब सर, फिर से समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे। So, I hope this time the voice will not break and let's start fresh. कोई स्टूडेंट छोड़ के तो नहीं गया क्लास को? चलिए, मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि ये इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो बेटे, प्राइस इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, P अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये हम करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी के केस में क्या है कि जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है हमेशा। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है ना? Yes sir. बट जो इनकम इलास्टिसिटी है उसमें ई इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले से, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। इज दैट ओके? डिड यू गेट इट? कि इनकम इलास्टिसिटी, यस सर। इनकम इलास्टिसिटी के केस में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और वो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनकम के साथ कुछ कमोडिटीज की डिमांड बढ़ सकती है इनकम के बढ़ने के साथ, और इनकम के कम होने के साथ कुछ कमोडिटीज की डिमांड कम हो सकती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. And hence we have different types of income elasticities. The first one we have discussed was the positive income elasticity of demand. Positive क्या होगी? Other things remains constant. When with increase in income, quantity demanded increases, and with decrease in income, quantity demanded decreases. That means the income and the quantity demanded for that particular commodity is moving in the same direction. कि दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि इनकम भी बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है। तो इस तरह को बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इस तरह का जो आंसर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो पॉजिटिव आएगा। अब ये कैसे गुड्स में होगा? ये या तो नॉर्मल गुड्स में होगा या लग्जरियस गुड्स में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि नॉर्मल गुड्स के केस में और लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव आएगा। इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि सिंपल है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब इनकम बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, इनकम के कम होने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो ये क्या है? ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। नेगेटिव किस में होगी? जब इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी,
यानी कि जिस डायरेक्शन में इनकम मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड मूव करेगी। इज दैट ओके? देखो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ दिस नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इन केस ऑफ व्हाट यू कॉल इट, इंफीरियर गुड्स, यू नो, inferior goods, कि बेसिकली इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि जो गुड्स इंफीरियर होते हैं उनमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, फिलहाल जितना बताया उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? सर नॉर्मल गुड्स के एक दो एग्जांपल दे दो प्लीज। चलिए देखो बेटे, अब इसको थोड़ा, क्या नाम है बेटे, किसने सवाल पूछा है ये? सर कनिका। हाँ कनिका, ध्यान से सुनो और बाकी सब स्टूडेंट्स भी सुनिए। कोई भी कॉमोडिटी अपनी एब्सोल्यूट सेंस में ना तो नॉर्मल है, ना लग्जरी है, ना इंफीरियर है। ये जो है ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी कर सकती हैं। जो कॉमोडिटी मेरे लिए नॉर्मल है, यानी कि जिस कॉमोडिटी को मैं नॉर्मल ट्रीट करता हूं, उसको वो कॉमोडिटी किसी दूसरे कंज्यूमर के लिए हो सकता है लग्जरी गुड हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। तो नॉर्मल गुड का एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है, लग्जरियस गुड का एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है, इंफीरियर गुड का एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, सपोज करो ये आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, जैसे ये एक आ रही है ना, एक कौन सी आई है, ये होंडा सिटी टाइप नई गाड़ी चल रही है ना, कोई बड़ी नई गाड़ी आई है तो नाम बताओ जरा किसी का। हेलो, टेस्ला। हैं, क्या नाम है? टेस्ला। टेस्ला। टेस्ला, चलिए मान लीजिए टेस्ला, आई डोंट नो व्हिच कार इज टेस्ला, इज व्हिच वन, मैंने देखी नहीं रोड। होंडा अमेज। होंडा अमेज है, या मान लीजिए होंडा सिटी, लेट अस अज्यूम। अब हो सकता है मेरे लिए होंडा सिटी जो हो वो लग्जरी गाड़ी है कि हो, मैंने तो होंडा सिटी खरीद ली भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हो सकता है अब अंबानी का बेटा जा रहा है तो वो कह रहे ये क्या होंडा सिटी लेके घूम रहे, तो अब अंबानी का बेटा जाएगा तो होंडा सिटी उसके लिए क्या है, इंफीरियर गुड हो गई, हमारे लिए वो लग्जरी गुड है। हो सकता है हमसे थोड़ी सी ज्यादा इनकम जो रखता हो, इनकम ब्रैकेट में हो, हमसे 20-50% जिसका इनकम ब्रैकेट ज्यादा हो, उसके लिए होंडा सिटी नॉर्मल गुड हो। ठीक है, और जो मान लीजिए हमसे नीचे वाली इनकम वाला है उसके लिए भी होंडा सिटी लग्जरी गुड है। उसके लिए हो सकता है वैगन आर, या जो ये और जो जो स्मॉल सेक्शन की कार आती हैं वो कार जो उनके लिए वही लग्जरी है, या उनके लिए वो नॉर्मल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है ना? तो जो लग्जरी गुड है या नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है, इसका कोई एब्सोल्यूट सेंस में कोई भी कॉमोडिटी ना तो नॉर्मल है, ना लग्जरी है, ना इंफीरियर है, रिलेटिवली है। अब होता क्या है कि बुक्स में कई बार आपको एग्जाम्पल लिखे हुए भी मिलेंगे, पर वो एक जनरल सेंस में लिखे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों को ज्यादातर लग्जरी कार्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एस्कॉडा की कार्स आती हैं जो, ठीक है, फिर आपका मर्सिडीज बेंज हो गई, BMW हो गई, या मान लीजिए और भी तो ऑडी हो गई, या और भी बहुत सारे कार्स के नाम होंगे जो होंगे, हो सकता है मुझे सभी के नाम मालूम भी ना हो। तो वो एक जनरल सेंस में हम लिखते हैं कि ये तो लग्जरी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सेक्शन पॉपुलेशन कंट्री का ऐसा है जिनके पास ऐसी गाड़ियां नहीं है, इसलिए वो ज्यादातर पॉपुलेशन के लिए लग्जरी मानी जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। तो वो तो उनके सभी लगभग सबके लिए लग्जरी होगी ना। वो तो कुछ ही लोग हैं जो उसको नॉर्मल कह रहे हैं, चाहिए इससे ज्यादा तो मैं तो लिमोजिन में घूमूंगा। वो उससे कोई बड़ी गाड़ी को कोई लेगा, कोई जैगुआर लेगा। एक गाने में जैगुआर जैगुआर भी बोलते हैं, कोई गाना चलता है उसमें, तो आई थिंक जैगुआर इज ऑल्सो अ कार जिसमें जो लग्जरी कार्स में आती है। कोई फेरारी लेगा, कोई और अपना स्टाइल करेगा तो कहेगा मैं फेरारी में घूमता हूँ, यू नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। तो इसमें एज सच बच्चे कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं, जो नॉर्मल गुड है, लग्जरी गुड है, और जो इंफीरियर गुड है। तो बाकी हम मान लीजिए मैं अगर इनकम बढ़ने के साथ किसी एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ा रहा हूं,
और इनकम कम होने के साथ एक्स कमोडिटी की डिमांड कम कर रहा हूं, यानी कि मेरी इनकम इलास्टिसिटी एक्स कमोडिटी के लिए पॉजिटिव है, तो वो एक्स कमोडिटी मेरे लिए या तो नॉर्मल गुड है या मैं उसको एज अ लग्जरी गुड ट्रीट कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं एक्स कमोडिटी को ही ऐसे ट्रीट करने लग जाऊंगा कि मेरी इनकम बढ़े तो मैं एक्स कमोडिटी की डिमांड कम कर दूं, और इनकम कम हो एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से एक्स कमोडिटी मेरे लिए इंफीरियर गुड हो गई, यानी कि आई एम ट्रीटिंग एक्स कमोडिटी एज अ इंफीरियर कमोडिटी फॉर माई सेल्फ। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो देर इज नो एज सच एग्जाम्पल्स, बट you can see from your own practically you can observe your surroundings that what are the commodities whose demand you have been increasing with increase in your income or your family income, and those commodities you can consider them as an normal good or luxurious goods. वो सब आप लोग अपने अपने घर में ऑब्जर्व कीजिए कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम किस तरह की कमोडिटी की डिमांड को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इनकम बढ़ते ही जिन कमोडिटीज़ की डिमांड आप ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वो आप लोगों के लिए या तो नॉर्मल गुड है या उसको आप एज अ लग्जरी गुड ट्रीट कर रहे हो, और जिनकी डिमांड कम कर दोगे तो आप उसको इन्फीरियर। सपोज करो ऐसा मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए पहले कोई इंसान था, कोई भी इंडिविजुअल था, वो लेट्स अज्यूम 50,000 पर मंथ उसकी अर्निंग थी, पर मंथ की अर्निंग। तो उसने मान लीजिए 15,000 20,000 का जो फ़ोन था वो उसने उसको लग्जरी मान के चला वो कि भाई मैं 20,000 रुपये का फ़ोन है। कौन सी कंपनी का कोई फ़ोन आ रहा है बताओ ज़रा नाम, जो 20-1,000 रुपये का हो। हेलो बताइए सर। ओप्पो F17 प्रो। ओप्पो कौन सा प्रो है भाई ये? ओप्पो F17 प्रो। ओप्पो F17 प्रो है? यस सर। हाँ, ओप्पो F17 प्रो जो है सपोज करो 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन है। अब जिसकी 50,000 रुपये इनकम है मंथली, वो 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन ले रहा है, तो वो उसके लिए वो उसको एज अ लग्जरी ट्रीट कर रहा है। बट सपोज करो ऑल ऑफ अ सडन उसका प्रमोशन हो गया, उसकी इनकम ब्रैकेट जो था वो 50,000 से 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीने हो गई। तो अब वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं तो एप्पल का फ़ोन खरीदूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, वो एप्पल के फोन Yes, पे sir. चला जाएगा, या गैलेक्सी नोट जो महंगे आते हैं 80,000 90,000 के अराउंड 1 लाख के अराउंड भी फ़ोन आते हैं महंगे, उस पर स्विच कर जाएगा। तो उस केस में जो वो ओप्पो का फ़ोन था उस पॉइंट ऑफ टाइम से वो ओप्पो का फ़ोन को वो कंज्यूमर इन्फीरियर ट्रीट करने लग गया, उसके लिए वो इन्फीरियर हो गया। और जो एप्पल के फ़ोन पे वो शिफ्ट किया, या गैलेक्सी नोट जो भी जिस भी अपर ब्रांड के तरफ वो गया है उस पे शिफ्ट हो गया, तो वो उसके लिए लग्जरी गुड हो गई। डिड यू गेट इट? Yes, sir. This is how you have to evaluate, कि which commodity is normal, which commodity is luxury, which commodity is inferior. I hope I clarified your doubt, Yes, sir. Thank you very much, sir. So the next one is zero. The next one is zero income elasticity of demand. Zero income elasticity of demand. Now, in case of zero income elasticity, what happens is other things remains constant. Other things remains constant when increase or decrease in income does not change quantity demanded. That means income is in either the income increases or decreases, but the quantity demanded does not changes for that particular commodity. ठीक है? In that case we will say there is a zero income elasticity of demand. That means the quantity demanded is not sensitive to the income. The change in income is not causing any change in quantity demanded of that particular commodity. Hence that commodity, such kind of situation you will observe in sometimes we can say that
necessary goods, goods that are necessary for us. Let me quote few examples. Suppose some medicine is being prescribed to a patient by the doctor, and irrespective of the income, the patient is supposed to take that medicine, and in that particular quantity that has been prescribed by the doctor. Is that okay? Hello? Yes, sir. ठीक है, तो वो नेसेसरी गुड्स हो गए. सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई मैंने रीडिंग सजेस्ट की है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम ब्रैकेट वो स्टूडेंट को वो रीडिंग खरीदनी पड़ेगी. और ऐसा नहीं होगा कि उसकी इनकम बढ़ गई तो वो 10 किताबें खरीद लेगा, 10 कॉपियां खरीद लेगा. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? या इनकम कम होगी तो वो एक भी कॉपी नहीं खरीदेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर. ठीक है. Yes, सर sir. सॉल्ट हो सकता है एग्जाम्पल? वेल ये मुझे मालूम है, ये 12th क्लास में पढ़ाते हैं सॉल्ट का एग्जाम्पल बच्चों को. बट यू सी द सॉल्ट जो ईटेबल्स हैं, ईटेबल्स तो ज़्यादातर सभी हम इनकम इन इलास्टिक ही रहते हैं. वो तो उनकी तो इलास्टिसिटी कम ही रहती है. हाँ, ज़ीरो है ये मैं नहीं कह सकता पूरी तरह से, कि मान लीजिए इनकम कम होगी तो हो सकता है हम नमक कम यूज़ करना शुरू करें घर में, हम उसको बचा के रखें, उसको ज़्यादा एहतियात से यूज़ करें. खाने पीने का सामान ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग. हेलो? यस सर. ठीक है. मान लीजिए इनकम कम हुई है तो जो मिल्क है, मान लीजिए मिल्क है, अब चाय पीते हैं सभी, तो हम मान लीजिए जैसे अब ये कोविड सिचुएशन में जो लॉकडाउन चला, उस ड्यूरेशन में जो लोगों की इनकम नहीं रही, मान लीजिए जिन लोगों की, या अर्निंग्स कम हो गई, तो उन लोगों ने क्या शुरू किया? फिर उन लोगों ने शुरू किया कि भाई धीरे धीरे जो अपने एक्सपेंडिचर से उनको स्क्वीज़ किया. अब एक्सपेंडिचर स्क्वीज़ होने का मतलब क्या है कि वो ईटेबल्स जो थे, उन ईटेबल्स को भी लेकर इस तरह से एहतियात से ज़्यादा यूज़ करने लगे ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर सके उस सिचुएशन को. यस और नो? तो ईटेबल्स में नेसेसरी गुड्स होते हैं, उनमें हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम. उनमें चेंजेस आ जाते हैं हमारे. तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती है सॉल्ट के केस में. हाँ, इन इलास्टिक होती है. There is some positivity, but that is not zero. I don't think that would be zero, completely zero even. Hello? ओके सर. ठीक है, कि कंप्लीट ज़ीरो हो ये मतलब कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा. हालांकि बुक्स में इस एग्जांपल को दिया हुआ है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस पॉइंट. ठीक है, तो मेरा सबमिशन यही है कि आप प्रैक्टिकली देखिए कि इनकम बढ़ती घटती है तो नमक को, मसालों को, या हालांकि इनकम इतनी ज़्यादा घट जाए कि नमक मसाले वो नेसेसरी गुड्स हैं, वो तो हम उतनी ही क्वांटिटी में राशन ज़्यादातर लोग सभी खरीदते हैं. तो उस सेंस में ये मानकर चलिए कि हम उस सेंस में कह सकते हैं कि वो नेसेसरी गुड्स हैं. ईटेबल्स को तो उसमें सिर्फ नमक को कहना ठीक नहीं होगा. ईटेबल्स यू विल बी फाइन, यू नो. ठीक है. ओके सर. सिर्फ हम सॉल्ट को कहें वो इतना उचित नहीं होगा. हाँ, ईटेबल्स के केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है वो इनकम इन इलास्टिक रहती है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी आप जीरो मान सकते हो कि इनकम कम ज्यादा हो जाती है तो राशन हमारा लगभग उतना ही लगता है. अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए इनकम बढ़ गई तो पहले इंसान का पेट जो है 4 रोटियों में उसको पेट भरता था, वो 40 रोटी खाने लग गया, कह रहा है मेरी तो इनकम बढ़ गया, मैं ज़्यादा रोटियां खाऊंगा. ऐसे तो नहीं होता वो. ठीक है. तो ईटेबल्स, लगभग सभी ईटेबल्स को आप नेसेसरी गुड्स ले सकते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं. तो उनमें इनकम इलास्टिसिटी लगभग ज़ीरो होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो नॉट ओनली इन केस ऑफ सॉल्ट बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द ईटेबल्स. आई थिंक दिस इज माय सबमिशन. हेलो सर, ब्रांड भी तो चेंज हो सकती है. हाँ, क्या नाम है? नाम बताओ भी. मुकेश नाम है सर. हाँ मुकेश, क्या कह रहे हो? क्या चेंज हो सकता है बेटे? सर जैसे साल्ट की टाटा ब्रांड है तो कोई दूसरी ब्रांड हो सकती है सर, इनकम कम होने के बाद.
हाँ, तो मैंने कब बोला कि ब्रांड? उसने गुड़िया ने का जो सवाल था वो ब्रांड का तो था ही नहीं ना। उसने ये सवाल नहीं पूछा ना कि टाटा नमक की डिमांड कम होगी या नहीं होगी। उसने मुझसे नमक पूछा है, ब्रांड की तो बात ही नहीं हुई ना यहाँ पर। ये तो सवाल हो ही नहीं रहा ना कि भाई आप जो है घर में चाय की पत्ती टाटा की लेकर आ रहे हो या ब्रुक बॉन्ड की लेकर आ रहे हो। ये सवाल नहीं था ना। सवाल ये था कि सॉल्ट की इलास्टिसिटी जीरो है या नहीं है, या सॉल्ट नेसेसरी गुड्स हैं या नहीं है। दैट वाज द क्वेश्चन आई थिंक। तो ब्रांड तो कोई भी चेंज कर सकता है। अब मान लीजिए, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब क्लोथ्स हैं, ठीक है बेटे। अब क्लोथ्स जो हैं, जब हम सिर्फ क्लोथ कह रहे हैं तो वो नेसेसरी गुड हो गया कि एवरीवन मस्ट हैव द क्लोथ्स, इजंट इट? रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सब Yes, sir. ना, ये डायलॉग तो फिल्मों में भी सुना है और आम जीवन में भी हम सुनते हैं। तो बट जब अब क्लोथ्स में हम कह दें कि भाई आप वैन हुसैन के कपड़े पहन रहे हो या यूसीबी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो या वुडलैंड ब्रांड से पहन रहे हो, या मान लीजिए और एलीट ब्रांड्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, या आप दुकान पे जाके एक वो अपनी पैंट शर्ट का कपड़ा लेते हैं और टेलर से सिलवा लेते हैं, उस तरह से ले रहे हैं। या कोई और है तो कोई जो रोड साइड्स मार्केट होती हैं वहां से ले रहे हैं। तो वो तो एक क्लोथ्स में ही कैटेगराइजेशन हमने कर दिया ना। अब फूड में कोई कह दे मैं तो पिज्जा खाता हूं डेली, और वो भी मैं पिज्जा हट से मंगाता हूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो लग्जरी हो गया ना। वो लग्जरी की तरफ चले गए आप। यानी कि क्लोथिंग में भी लग्जरी पर जा सकते हो आप, क्लोथिंग में भी इंफीरियर हो सकते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में होते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों में है। अब मान लीजिए कोई इंसान ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन में भी एक तो जनरल डब्बे की टिकट कराएगा वो बुक रिजर्वेशन, एक या हो सकता है वो स्लीपर क्लास की कराए, फिर एक हो सकता है थर्ड टियर एसी कराए, फिर हो सकता है सेकंड टियर एसी हो, फिर फर्स्ट टियर एसी हो, यानी कि फर्स्ट क्लास एसी होता है। तो वो लग्जरी हो गया। जैसे वो फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ता जाएगा, जनरल से फर्स्ट की तरफ मूव करेगा, तो वो लग्जरी की तरफ मूव कर रहा है। तो वो तो किसी भी कॉमोडिटी में हो सकती है, ठीक है? हेलो, ओके सर। ठीक है। तो आई थिंक ब्रांडिंग जो है, जब हम ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ब्रांडिंग इज स्पेसिफिकली the people moves to the better brands just in case when they treat that brand to be the luxurious brand, you know। तभी तो उसके मन में वो आशा होती है भाई मैं तो उस ब्रांड के कपड़े पहनूं, मैं तो उसकी जैकेट लेकर आऊंगा, मैं तो उस कंपनी के शूज पहनूंगा, ठीक है। बट जब हम सिर्फ शूज कह रहे हैं तो शूज इटसेल्फ is a commodity, and when the brands are being associated, then the consumer may have whether it is a normal or luxury or inferior, something like that, you see। hello, यस सर। ठीक है। तो कोई और सवाल, किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है? हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या नाम है? सर मनीष। हाँ मनीष, बोलो। सर मुझे पूछना था कि फिर नेसेसरी गुड्स सब्जेक्टिव वो है नॉर्मल लग्जूरियस इंफीरियर की तरह या नहीं है? मैं समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पा रहे? आपकी का सवाल एक बार फिर से रिपीट करो। क्या नहीं समझ पा रहे हो आप? सर जैसे नॉर्मल गुड्स, लग्जूरियस गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स सब्जेक्टिव है पर्सन के लिए, तो नेसेसरी भी फिर हुए गुड्स सब्जेक्टिव या नहीं? नेसेसरी गुड्स भी सब्जेक्टिव होते हैं भाई। फूड की, जैसे फूड जब हम एज अ फूड कहेंगे तो फूड इज नेसेसिटी फॉर एवरीवन, इजंट इट? अब फूड में सब कैटेगरीज आ जाओ। कोई हो सकता है सिर्फ चावल खाता होगा, कोई हो सकता है रोटी खाता होगा, कोई हो सकता है रोटी और चावल दोनों खाता होगा। मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। तो यानी कि जब हम फूड कहेंगे तो फूड इज नेसेसिटी फॉर एवरीवन हु इज ऑन दिस लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। इज दैट ओके? यस सर। तो फूड में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। फूड इज रिक्वायर्ड और फूड इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू सर्वाइव। नाउ व्हेन वी मूव टू वन लेयर डाउन, और यू कैन से द सब कैटेगराइजेशन, let us which food now, the question is which food, who likes which food?
मान लीजिए मुझे चावल पसंद है, चावल में भी फिर अलग अलग तरह की वैरायटी बन सकती है, पुलाव बन सकते हैं, कोई प्लेन वाइट चावल बन सकते हैं, फिर येलो टाइप से के बनते हैं, फिर अलग उसमें कुछ वैरायटीज और बन सकती है, फिर फ्राइड राइस बन सकते हैं। तो उसमें वो सब कैटेगराइजेशन हो गया कि राइस पसंद है। अब राइस मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे तो फ्राइड राइस पसंद है, दूसरा कहता है मुझे प्लेन राइस पसंद है, तीसरा कहता है मुझे वो सब्जेक्टिविटी वहां पर आई। बट जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, यू नो। जब हम उसमें जैसा वो जो ये किसने पूछा था सवाल इससे पहले सवाल किसने पूछा था? मनीष से पहले सवाल किस बच्चे ने पूछा था? हेलो, मैंने पूछा था सर, मुकेश ने सवाल जो पूछा था, मुकेश ने ब्रांडिंग का पूछा। तो जब वो ब्रांडिंग की बात आएगी तो वहां सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। बट जहां पर सिर्फ क्लोथ की बात है तो वहां सब्जेक्टिविटी नहीं है, क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। यस सर। तभी मैंने एग्जांपल दिया था रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें सबकी रिक्वायरमेंट है। वो हो सकता है किसी को ग्राउंड फ्लोर का मकान पसंद है, किसी को टॉप फ्लोर का मकान पसंद है, किसी को बड़ा मकान पसंद है, किसी को छोटा मकान पसंद है, किसी को अपने मकान का किसी अलग डिजाइन का मकान पसंद है, किसी को किसी और डिजाइन का मकान पसंद है। वो सब्जेक्टिविटी हुई। बट एवरीवन नीड्स अ हाउस और अ होम, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू सी। गॉट इट? यस सर, तो थैंक यू। जहां पर नेसेसिटी की बात आती है तो वहां सब्जेक्टिविटी उसके सब कैटेगराइजेशन में हो सकती है, ठीक है। बट जहां पर सिर्फ हम नेसेसिटी बात बोलेंगे, वो नेसेसिटी सबके लिए सेम रहेगी अनलेस अंटिल वी हैव बीन सब कैटेगराइजिंग दोज नेसेसिटीज, सब्जेक्टिविटी उस पॉइंट पे नहीं। अब जैसे मान लीजिए सब सब्जी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं सब, यस और नो? सिर्फ रोटी नहीं खा सकते इंसान, रोटी के साथ उसे सब्जी खानी पड़ती है। तो अब जब हम वो सब्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन, लेट अस अज्यूम, बट कौन सी सब्जी? किसी को भिंडी की सब्जी पसंद होगी, समवन किसी को टिंडे की पसंद होगी, किसी को बैंगन का भरता पसंद होगा, किसी को मटर पनीर पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। वो अपनी अपनी चॉइसेस होती, किसी को करेला पसंद होगा, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। वहां पर फिर वो सब कैटेगराइजेशन में क्या कहते हैं कि व्हाट डू यू कॉल इट, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर जो गुड्स हमें फेस्टिवल में नाम है यूज करना बेटे? होता है वो नाम बताओ। सर विशेष कुमार। हाँ विशेष, बोलो। सर फेस्टिवल में यूज होने वाले गुड्स को हम क्या कहेंगे? कौन से फेस्टिवल में यूज होने वाले गुड्स को? नहीं मतलब सर ऑल ओवर इंडिया कोई भी फेस्टिवल होता है जैसे कि हम्म। उसमें हम अलग अलग तरह के गुड्स यूज करते हैं, तब हम उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे? मतलब हम मान लीजिए कोई फेस्टिवल का एग्जांपल ले लो ना, फिर उसी से करते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या क्या कहना चाह रहे हो? आपका सवाल मुझे मान लीजिए हाँ, सर, आप मान लीजिए बोलिए दिवाली है, दिवाली दिस इज व्हाट यू वांट टू से। मान लीजिए दिवाली है, तो दिवाली में क्या होगा कि सब लोग ज्यादातर अपने घरों में दिए रोशनी करेंगे, यस और नो? यस सर। अब रोशनी सब करेंगे तो वो एक तरीके के लिए सबकी वो चॉइस होगी ना। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो इनकम स्पेसिफिक होगी चॉइसेस। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो तो रोशनी कर ही नहीं पाएगा। हो सकता है किसी के पास कम पैसे होंगे तो वो छोटा दिया जला लेगा, कोई कैंडल को लाइट करेगा, कोई जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं फैंसी लाइट्स वो उस तरह की लगा देगा अपने घर पे, यस और नो? तो वो तो स्पेसिफिकेशन हो ही गया ना अलग अलग तरह से, ठीक है। यस सर। तो वो तो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो ही गई ना वहां पर भी। पर जब एक फेस्टिवल की बात, अब जैसे मान लीजिए दिवाली का फेस्टिवल है तो ज्यादातर सब लोग पटाखे उस पे जलाते हैं, ठीक है। अब Yes, sir. पटाखे जलाते हैं, पटाखों में फिर पटाखे ज्यादातर सब जला रहे हैं, पर कोई ज्यादा पटाखे जला रहा है, कोई कम जला रहा है, कोई सस्ती क्वालिटी के लेकर आ रहा है, कोई महंगी क्वालिटी के लेकर आ रहा है, कोई ज्यादा अमाउंट के लेकर आ रहा है, कोई कम अमाउंट के। तो वहां वो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। मैंने कहा ना कि जब आप सब कैटेगराइजेशन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का तो वहां पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। अदरवाइज इन जनरल किसी प्रोडक्ट को देखोगे तो वो जनरल सभी के लिए वो इसी एक ही तरह का होगा, ठीक है। यस सर।
अब जैसे हम कहें कि एवरीबडी वांट्स अ व्हीकल, हर एक को एक सवारी चाहिए, व्हीकल चाहिए, आजकल सबके पास व्हीकल्स हैं। वो व्हीकल कुछ भी हो सकता है, किसी के पास साइकिल होगी, किसी के पास बाइक होगी, बाइक में भी अलग अलग वैरायटी होंगी, साइकिलें भी अलग अलग तरह की होंगी, किसी के पास कार होगी, किसी के पास छोटी कार होगी, किसी के पास बड़ी कार होगी, किसी के पास क्या कहते हैं कि अपनी पर्सनल वैन होगी, किसी के पास अपनी वैनिटी वैन वगैरह जो बस रखते हैं जिसमें सब कुछ होता है उस टाइप की होगी, किसी ने अपना प्राइवेट जेट प्लेन खरीद रखा है, या सुनो। अब जैसे ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ट्रेन का भी, तो हो सकता है आगे जाके ट्रेन भी प्राइवेट लोग अपनी अपनी खरीद लें कि ये मेरी रेल चलेगी यहाँ से वहाँ तक, इजंट इट? यस सर। ठीक है, तो वो कैटेगराइजेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज देयर। इट डिपेंड्स कि एट विच लेयर वी हैव बीन डिस्कसिंग और वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द कमोडिटीज। कमोडिटीज को हम किस लेयर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। अदरवाइज तो कमोडिटीज आर कमोडिटीज, ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। Shall we proceed now? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we have discussed the income elasticity. Now I'll proceed further. Now here comes the cross elasticity of demand. Now comes the cross elasticity of demand. Well, how we can define it? Other things remains constant. Other things remains constant. Excuse me, sir. It measures. Please don't interrupt. It measures. Let me finish this. Then you can ask. It measures the degree of responsiveness of proportionate change in quantity demanded for X commodity due to proportionate change in price of Y commodity. अब देखो बेटे, यहाँ इस डेफिनेशन को समझाने से पहले ये किस बच्चे ने सवाल पूछना चाहा था? कौन, क्या कहना चाह रहे थे भी तुम मिस्टर? हेलो, क्या नाम है आपका? Actually, sir, Rohit sir, actually I had a doctor's appointment right now. So I wanted to ask you, can I mark my attendance and leave? Yes, you can mark and leave. Thank you, sir. अब इस तरह की बातों के लिए बीच में नहीं टोका करो क्लास जब चल रही हो तो। Okay, sir. पहले मैंने कितना सवाल पूछे, उस टाइम कोई नहीं बोला, अब तुम्हें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अचानक याद आ गई। लुक, अब हम देख रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट है। अब क्रॉस मींस पहले क्या था, जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी सिंपल पढ़ी तो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या था, एक्स कमोडिटी का ही प्राइस था और एक्स कमोडिटी की ही डिमांड थी। दैट मींस डिमांड एंड प्राइस वर ऑफ द सेम कमोडिटी, दैट इज एक्स। जो इनकम इलास्टिसिटी है, तो इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या देखा कि इनकम है और कमोडिटी की डिमांड है, कंज्यूमर की इनकम है और कमोडिटी की डिमांड है। बट जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी देख रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है कि प्राइस जो है किसी और कमोडिटी का है और क्वांटिटी डिमांडेड किसी और कमोडिटी की है, यानी कि देयर इज अ क्रॉस। दैट मींस दिस प्राइस इज नॉट ऑफ दिस कमोडिटी एक्स, दिस प्राइस इज ऑफ दिस कमोडिटी वाई।
and this quantity demand is not for commodity Y, this quantity demanded is for commodity X. That means there is some other commodity whose price is being affecting the demand for this commodity. Is that okay? Hello? Hence it is known as cross elasticity. Now look at the definition. It measures the degree of responsiveness of proportionate change in quantity demanded for X commodity. यानी कि डिमांड जो है वो X commodity की चेंज हो रही है ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ Y commodity, और प्राइस जो है वो Y commodity का चेंज हो रहा है, यानी कि Y commodity के प्राइस चेंज होने से X commodity की डिमांड पे क्या परसेंटेज चेंज का कितना इफेक्ट आया, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, उसको मेजर करती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज दैट ओके? लेट्स राइट इट algebraically, and as it is a cross elasticity, so let me write it EC, you can say EC, which means the cross elasticity, just to distinguish it from the other ones. And we can write percentage change in quantity demanded for X commodity divided by percentage change in price of Y commodity. That means the price of some other commodity is changing and the demand is for some other commodity. So let's calculate percentage change in demand for X. This can be calculated as QX1 minus QX divided by QX into 100. I have subscripted X with the quantity. The reason being, I just to make sure that the readers will understand that the quantity demanded is for X commodity. Is that okay? Similarly, we can calculate percentage change in price of Y. So in this case, what we can write is PY1 minus PY divided by PY into 100. That means I have subscripted Y with the price, reason being just to make distinction that this price is not corresponding to the X. This price is with respect to Y commodity. कि ये Y commodity का प्राइस है, ये X का प्राइस नहीं है, इसीलिए इनके साथ क्वांटिटी और प्राइस के साथ मैंने X और Y रिस्पेक्टिवली सबस्क्रिप्ट किया है. ठीक है. Similarly we can have the delta QX and this would be probably equals to QX1 minus QX, and delta PX, this would be PX1 minus PX. This is how we can calculate this. So these are the changes, and now we can substitute this thing in the formula and we'll get this. So the cross elasticity would comes out to be, if we simplify as earlier cases, if we simplify them, we'll get PY divided by QX into delta QX divided by delta PY. अब ये वही हो गया परसेंटेज मेथड. इसी तरह इसमें भी पॉइंट मेथड हो सकता है. We can have the point method, and the point method would be something like the same formula would be same, only the difference would be that this is being calculated through the calculus in point method, and this would be calculated by the algebra in case of percentage method. And you can also have the arc method or average method. Then in that case, PY1 plus PY divided by
qx1 प्लस qx इंटू में डेल्टा qx अपॉन में डेल्टा dy. Is that okay? Hello students, किसी ने कोई क्वेश्चन Yes, sir. किसी ने कोई सवाल पूछना है? Shall we proceed? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. अब इसमें भी आता है टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड. अब है टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटीज. सिमिलरली, जिस तरह से इनकम मेथड में जो आंसर आता था, जैसे प्राइस मेथड में नेगेटिव था, इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव था. इनकम मेथड में दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव. सिमिलरली क्रॉस इलास्टिसिटी में भी आंसर आइदर में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव. क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. तो इसलिए क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी की पहली टाइप क्या है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट when increase in the price of y causes increase in the demand for x and decrease in the price of y causes decrease in the demand for x. That means there is a positive relationship कि जब y commodity का प्राइस बढ़ेगा तो x commodity की डिमांड बढ़ेगी, और y commodity का प्राइस कम होगा तो x commodity डिमांड कम होगी. ऐसा कैसे गुड्स में होगा? ऐसा होगा सब्सटीट्यूट गुड्स में. गुड्स दैट आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, और उन गुड्स में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव आएगी. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी. इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली वी कैन हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट when with increase in price of y there is a decrease in demand for x, and decrease in price will cause increase. That could be negative or inverse. यानी कि जब y का प्राइस बढ़ेगा तो x की डिमांड कम होगी, y का प्राइस कम होगा तो x की डिमांड बढ़ेगी. ऐसा कौन से गुड्स में होगा? ऐसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. The goods which are complementary to each other, which complements to each other, will have the negative cross elasticity of demand. यानी कि अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दो गुड्स के बीच में, तो आप सिंपल कह दीजिए वो दो गुड्स एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. अगर मान लीजिए नेगेटिव आ रही है क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप कह दीजिए वो गुड्स एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया है? ठीक है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. द थर्ड वन इज द जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द थर्ड वन इज जीरो. सर इन दोनों का एक एग्जांपल लेके समझा दो. इलास्टिसिटी अभी समझाता हूं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए Coke and Pepsi. चलो कोक एंड पेप्सी. लेट्स राइट कोक एंड पेप्सी. दीज आर द वेरी कॉमन एग्जांपल. दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल. लेट्स राइट let's leave the Coke and Pepsi. Let's have some other example. You know, it's very common thing. You know, like substitute goods. You know, petrol and diesel.
these are the substitute fuels to each other, or you can say sometimes there is one more substitute, CNG, isn't it? This is also a substitute. So if we take these two goods at a time, then let us assume this is the Y commodity and this is the X commodity. अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो डीजल की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल वर्जन्स गाड़ियों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी. People will not prefer to have the petrol version cars, they will skip to the diesel version cars. Is that okay? और CNG version cars. अगर मैं पेट्रोल और CNG में देखूं या डीजल और CNG में देखूं तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह से चलेगा. Is that okay? Hello? Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये पॉजिटिव हो गया. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया कि कॉमोडिटी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, जो जॉइंटली हमारी किसी डिमांड को फुलफिल करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. लाइक व्हीकल एंड फ्यूल. व्हीकल एंड फ्यूल ऑब्वियस बात है कि अगर किसी व्हीकल के प्राइस बढ़ेंगे तो व्हीकल इटसेल्फ की डिमांड कम होगी, यस और नो. और व्हीकल इटसेल्फ की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस बात है फ्यूल की डिमांड भी कम होगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एक्स और प्राइस वाई के हो गए, कि वाई के प्राइस बढ़ने से एक्स की डिमांड कम हो गई. इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है. तो Yes, sir. नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक. आप ऑब्जर्व कीजिए अपनी सराउंडिंग्स में, बहुत सारी कमोडिटीज आपको ऐसे मिलेंगी दिखते हुए, इस तरह से कोरिलेटेड दिखेंगी आपको. ठीक है? इज दैट ओके? एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोई और सवाल पूछना है आप में से किसी ने? ओके देन लेट्स प्रोसीड. No, sir. Zero cross elasticity. Zero cross elasticity means any change in price does not cause change in quantity demanded for X. कि Y के प्राइस चाहे बढ़े या घटे, X की क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ऐसे कौन से गुड्स में होगा? अनरिलेटेड गुड्स. The goods that are not related with each other have zero cross elasticity of demand. मोबाइल महंगा होने से पेन की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Because mobile and Yes, sir. pen are not correlated with each other. They are not related goods to each other. Here there is some sort of relationship. Here the relationship is of a substitute nature. Here the relationship is of a complementary nature. Is that okay? But here they do not have any relationship. Is that okay? Hello? Yes, sir. ठीक है? अरे भाई समझ में आया है? Yes, sir. ठीक है. तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. तो आज इतना ही करते हैं बेटे. आज जो करा ये सब समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो आज इतना ही करते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी